Okay, so first of all, I'll introduce Stuweli Technology to you and then we will start with our today's masterclass. So, Stuweli Technology Private Limited has a successful track record in the field of academia, research, training, recruitment, and job assistance since its inception in 2018. We also offer training and internship for all levels of the professional world. It starts from plus two level to a seasoned professional. We in Struweli Technology emphasize academic and research development as no civilization can survive without education and can't progress without research. We work with each applicant to prepare them for employment ready. Struweli Technology bridges the gap between employer and employee via industry or product specific and pre-employment training. Just for a quick look, I'm sharing my screen and showing you all the unique services which Truwelly Technology Private Limited family holds. So I'll be sharing my screen now. I hope my screen is visible to you all. So for learning and teaching platform, we have Prayog, where we provide courses crafted with industry leaders for career advancement. Then for industry and training program, we have StuIntern, which offers hands-on internship programs. For professional AI resume builder, we have Resume Ocean. For job portal, we have Navrojan. For colleges, for searching colleges, schools, preschools, and universities, we have Vidyapun. For psychometric test, we have Sudakshta. And for research and PhD, we have Anushram. So these are all the unique services which we offer at Sueli Technology. So I'll be introducing your trainer for today's masterclass. Your trainer is Sanjeev Singh. So he is currently working as senior principal software developer with Marshmallow, and he has worked with multiple companies. So he will be leading today's masterclass. So over to you, Sanjeev sir. And one thing more, I want to add that students, if you are comfortable, please switch on your cameras and please try to be interactive with the trainer, like whatever questions he asks, please try to answer the question because we want this masterclass to be very interactive and make full optimum utilization of this masterclass. Over to you, Sanjeev sir. Hello. Yes, sir, you Hello. are audible. Yeah. Hi, everyone. Good morning. Hope you guys can hear me. Yes, you So are audible. I'll start with my introduction. So my name is Sanjeev Singh. I am a senior principal software developer. I have total experience of 10 years working into the software industry, and I have experience working with multiple technologies like PHP, LAMP. I mean, if I talk about stack, so it's LAMP stack, then mean stack, MERN stack, and few different other technologies as well. I've been doing this since 10 years and I've been taking trainings into multiple companies. Training freshers and then training professionals who want to upgrade their technologies. So, I've been doing this training since last 5 years. And I have pretty good experience teaching, right from the freshers to the professionals. Okay. Yeah, we will start this. So as if you want to have small introduction on what everyone here is doing or what they are willing to. So Will you anyone, please would you like to uh, introduce yourself? I just need an understanding of how much do you know if we are doing anything into technology that you know, so we can frame our master class or our course going forward. Anyone? Hey sir, I am Piyush Brahmankar. Mm-hmm. Currently studying in Bhilai Roonta College. I'm in second year of BCA. Okay. Hi, Piyush.
Yep, next. Feel free to turn your camera. Hello. Next, anyone? Subbu, Amit, Sita. So, okay, let me put it this way. So, anyone who has experience with any of the technology, anyone, guys, feel free to answer. Don't be shy. No, sir. No? Okay. Okay. So, since you said no, let's start with very basic. So, cool. So let's talk about technology. So, talking about technology, we are doing programming, right? So, let's talk about programming languages. So, anyone, I mean, when we say programming language, so what is programming language? ये होता क्या है? एक language है, I mean, like normal language, like we are right now communicating with each other in English or Hindi, right? So, I say something. I hope everyone is comfortable with English and Hindi, right? Yes, sir, we Sir, are comfortable. Yeah, Hindi. okay. So right now we are communicating. So अभी हम बात कर रहे हैं. So if I say it in English, you'll understand. If I say it in Hindi, you'll still understand. But if I speak some other language, right? If I speak some other language like say Kannada, some who know Kannada would understand, some who don't doesn't know would not understand. So what you will need, you need someone to translate it for you, right? Correct. So this is how it works with programming. So we say we write a language, we write something, we write code into programming language. Correct. So what is programming language? It's a normal language that is meant for the computer to understand. But does computer understand programming language? कंप्यूटर को समझ में आ रहा है क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नहीं ना. कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज. करेक्ट. कंप्यूटर क्या समझ में आता है? बाइनरी लैंग्वेज. अगर उसको बाइनरी समझ रहा है एंड व्हाट यू आर राइटिंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो लैंग्वेज कोई भी हो, जावा हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, पीएचपी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी शार्प हो गया, कुछ भी हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझता है. तो कंप्यूटर को एबीसीडी ये सब कुछ नहीं समझता है. कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? वंस एंड जीरोस, राइट? तो ये वंस एंड जीरोस अगर कंप्यूटर को सिर्फ वही समझ रहा है, तो उसको भी क्या लगेगा? एक कोई मिडल मैन लगेगा जो इस चीज को क्या करेगा, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा. करेक्ट. तो इसका जो कन्वर्जन हो रहा है, वो जो मिडल मैन है, वो कौन होता है? वो होते हैं हमारे कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स. करेक्ट. इनका काम क्या होता है? इस जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं उसको कन्वर्ट करना. किस में कन्वर्ट करना? बाइनरी में. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? बाइनरी. तो तुम लोग जो भी कोड लिखोगे वो कन्वर्ट किस में होगी? बाइनरी में. ठीक है. करेक्ट. समझा यहाँ तक? कोई डाउट? तो इसके आगे मतलब ये जो कन्वर्जन होता है ये होता है, फिर कंप्यूटर को समझ में आता है तो कंप्यूटर उसको आगे रन करता है, फिर जो भी हम लोग आउटपुट देखते हैं वो आउटपुट हमें मिलता है. ठीक है. बट ये चीजें स्टार्ट कैसे हुई? अगर हम लोग बात करें मर्नस्टैक जो हम लोग का कोर्स है, अगर हम लोग बात करें मर्नस्टैक टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इस मर्नस्टैक में आता क्या है? एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ. मन मतलब क्या? इसमें होता है मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड.जेएस. आप लोग को बेसिक तो ये पता है ना, ये टेक्नोलॉजीज के थोड़े नाम, नेमिंग कन्वेंशंस एटलीस्ट. हम लोग इसमें डीप जाएंगे. बट फिलहाल हम लोग जो करने वाले हैं, उसके बारे में समझो कि हम लोग क्या सीखने वाले. मन स्टैक. ठीक है. इसमें आता है मन क्या है? मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड.जेएस. ठीक है. तो ये सारी चीजें एक ही लैंग्वेज में लिखी हुई है. कौन सी लैंग्वेज है वो? जावास्क्रिप्ट. ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट अब है क्या? जावास्क्रिप्ट अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो ये बना क्यों? ठीक है. सबसे पहले समझो कि इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी. अगर जावास्क्रिप्ट का डेफिनेशन बोले तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है? सिंगल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. आप लोगों को बेसिक एचटीएमएल सीएसएस पता है? Yes, sir. Yes, sir. पता है ना? ठीक है. तो अब हम लोग आते हैं जावास्क्रिप्ट पे जो हम लोग सीखेंगे. अब जावास्क्रिप्ट बना क्यों? उसकी जरूरत क्या पड़ी? तो पहले जब कुछ साल पहले, कुछ डिकेड्स पहले एक्चुअली, तो कुछ डिकेड्स पहले क्या था
कि वेबसाइट थी, ठीक है, वेबसाइट थी नॉर्मल। उसमें क्या था, HTML था, CSS था। CSS भी नहीं था पहले, सिर्फ क्या था, HTML था। अब HTML होगा, HTML आप लोग इमेजिन कर सकते हो बिना CSS के कैसा दिखता है। अगर हम लोग एक HTML में CSS नहीं लिखे तो कैसा दिखेगा वो, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नॉर्मल, कुछ नहीं रहेगा, कुछ उसमें इंप्रेसिव रहेगा ही नहीं, राइट। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि अच्छा इसमें कुछ कलर्स रखते हैं, कुछ इसको अच्छा बनाते हैं, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, CSS लाए। CSS से क्या किया, उसको ब्यूटीफुल बना दिया। अब वेबसाइट ब्यूटीफुल दिखने लग गए। फिर धीरे 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 क्या रियलाइज किया गया कि ओके ठीक है, अब ये अच्छा दिख रहा है, इसको इम्प्रेसिव बना दिया, अब इसको क्या करते हैं, इंटरैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो उसलिए उन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को इन्वेंट किया। जावास्क्रिप्ट चलेगा कहाँ, क्लाइंट साइड। HTML CSS हमारा कहाँ चलता है, क्लाइंट साइड पे। अब क्लाइंट साइड होता क्या है, इस पे भी हम लोग आएंगे, बट ये चलता कहाँ है अभी के लिए, समझो क्लाइंट साइड कहाँ है, ब्राउजर है। जो क्लाइंट साइड वो हुआ जहां से यूजर इंटरेक्ट करेगा। हमारे लिए क्लाइंट कौन है, यूजर है ना। तो वो क्लाइंट साइड चीजें चलेगी तभी यूजर उससे इंटरेक्ट कर पाएगा। तो जैसे ही HTML CSS था, फिर उन्होंने रियलाइज किया कि अब इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं, तो वो लोग क्या लेके आए इसमें, जावास्क्रिप्ट लेके आए। अब जावास्क्रिप्ट उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। तो जावास्क्रिप्ट बनाने के लिए दिन कितना लगा पता है तुम लोग, बहुत सारी चीजें आएगी ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिर्फ कोड नहीं लिखना है, बट उसको कन्वर्ट करना, उसको समझाना, मशीन को समझाना, ये सारी चीजें भी होगी। पहला नेटस्केप नेविगेटर, अगर अगर तुम लोग ने सुना होगा नेटस्केप नेविगेटर, ये था उस टाइम पे एक कंपनी थी नेटस्केप, उसने ये एक उनका ब्राउजर था नेटस्केप नेविगेटर। उन्होंने क्या किया, रियलाइज किया कि इसको इंटरैक्टिव बनाना चाहिए वेब पेजेस को, तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट इन्वेंट किया। जावास्क्रिप्ट इन्वेंट करके पेजेस को इंटरैक्टिव बना दिया। बट इंटरैक्टिव तो बना दिया, ठीक है, और उन्होंने कोड वो सब लिख लिया। तो इसके साथ अगर हम लोग कंप्यूटर्स की बात करें, तो कंप्यूटर्स की दुनिया में एक और एक टेक जाइंट है। पता है किसी को कंप्यूटर का टेक जाइंट, ये नाम तो आपको पता होना चाहिए, एक दो नाम होंगे, कोई गेस करो। पीयूष, पीयूष। माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, करेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक टेक जाइंट आया, तो अब माइक्रोसॉफ्ट का भी एक ब्राउजर था, एक बहुत पुराना ब्राउजर, पता है, कोई इंटरनेट गेस ले सकता एक्सप्लोरर। है। हाँ करेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट था एक टेक जाइंट, उसका भी एक ब्राउजर था, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था, ठीक है, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर एक बहुत बड़ा ब्राउजर, मतलब उसमें एक बहुत फेमस ब्राउजर था ना। अब इसमें नेटस्केप अब दो कॉम्पिटिटर आ गए, एक नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउजर हो गया, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर हो गया। तो अगर कंप्यूटर्स की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट पीछे तो नहीं रह सकता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने खुद का भी एक कोडिंग करनी चालू की, उसने खुद के ब्राउजर को भी इंटरेक्टिव बनाने चालू किया, ठीक है। तब अब दो ब्राउजर आ गए, एक नेटस्केप नेविगेटर आ गया, दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेटस्केप नेविगेटर ने एक जावास्क्रिप्ट बनवाई, ठीक है। उसने फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए उसमें कुछ तो होना चाहिए ना, जो उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करे बाइनरी लैंग्वेज में। तो उसके लिए उसने अपना एक इंजन बनाया, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर ने अपना एक इंजन बनाया जिसका नाम था स्पाइडर मंकी, ठीक है। अब इस स्पाइडर मंकी जो इंजन था, उसका काम क्या था, जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं उसको कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना, बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऐसे ही करके अब चाहिए था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने भी सोचा कि अब हम इसको इंटरैक्टिव बनाते हैं, अपने ब्राउजर को इंटरैक्टिव, वो पीछे तो नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक अपना इंजन बना दिया जावास्क्रिप्ट के जैसा ही, उन्होंने एक फ्रंट एंड कोड लिखा, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट नाम तो ले चुका था, जावास्क्रिप्ट नाम क्यों लिया था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जावा बहुत फेमस था, तो उसमें से जावा ले लिया, और क्योंकि ये स्क्रिप्ट फ्रंट एंड साइड रखने वाले, तो जावास्क्रिप्ट ऐसा एक नाम दे दिया। ऐसा कुछ रिलेशन है नहीं जावा और जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब सेम चीज इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास आ गई। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर कॉम्पिटिटर है, राइट। तो उसने भी क्या किया, अपना ही एक लैंग्वेज बना दिया। अब एक अपना लैंग्वेज बनाया, तो उसमें क्या हुआ, एक मीटिंग की गई, अब नाम तो डिसाइड करना होगा ना। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ने एक मीटिंग की, और बहुत टाइम तक सोचा उन्होंने, उसमें बहुत टाइम दिया, बहुत लोग मिलके सोचे। तो 10 मिनट में उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, इसको जे स्क्रिप्ट नाम दे देते। चलिए, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ने क्या किया, एक जे स्क्रिप्ट बना दिया। उसमें उनको वापस से एक
कोई कन्वर्टर लगेगा ना, एक मिडलमैन लगेगा ना जो कन्वर्ट करेगा उनके जे स्क्रिप्ट को बाइनरी लैंग्वेज में। राइट, तो उन्होंने उसको बनाया चक्रा। जो इंजन उन्होंने बनाया उसको बनाया चक्रा। क्लियर है? अब अब मार्केट में दो चीजें चल रही है, एक नेटस्केप नेविगेटर चल रहा है और एक इंटरनेट एक्सप्लोरर चल रहा है। नेटस्केप नेविगेटर भी इंटरैक्टिव है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इंटरैक्टिव है, बट दोनों में से फ्री है इंटरनेट एक्सप्लोरर और पेड है नेटस्केप नेविगेटर। तो लोग कौन सा यूज करेंगे? आप लोग कौन सा यूज करोगे, फ्री वाला पेड वाला? कुछ फ्री में भी। फ्री में ही। यही चीज नेटस्केप ने भी रियलाइज की कि धीरे धीरे उनका डिमांड कम हो, बट फ्री में कर रहा है। अब समझ लो, दो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो अलग ब्राउजर। तो एक, अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई, आज के टाइम पे हम लोग एक वेबसाइट बनाते, तो वो हम लोग अलग अलग प्रोग्रामिंग करते कि क्रोम में ऐसा चलेगा, सफारी में ऐसा चलेगा, फायरफॉक्स में ऐसा चलेगा, या कोई और ब्राउजर होगा उसमें ऐसा चलेगा। ऐसा तो नहीं करते ना हम लोग। राइट, हम लोग एक कोड लिखते हैं, वो कोई भी ब्राउजर में चलता है। तो सेम चीज अब इसके साथ हो गई, नेटस्केप नेविगेटर के साथ, कि नेटस्केप नेविगेटर यूज करने वाले इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज कर लें। तो अब होगा क्या कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए साइट बनाई गई है वो नेटस्केप में चलेगी नहीं, और इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री है। तो जितने के पास नेटस्केप नेविगेटर ऑलरेडी है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग धीरे धीरे नेटस्केप नेविगेटर को छोड़ देंगे और क्या यूज करने लग जाएंगे फुल फ्लेज में, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यही चीज नेटस्केप ने रियलाइज की कि अब कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, और कोई भी दो प्रोग्रामिंग तो नहीं करेगा, एक सेम चीज के लिए दो अलग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग तो नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि ये अपना पूरा कोड लेके चले गए एक कंपनी के पास, एक कंप्यूटर कंपनी के पास, जिस जो थी यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ठीक है, अगर आज के टाइम में हम लोग उसको बोले तो हम लोग एक्मा बोलते हैं। अगर एक्मा सुना होगा आप लोगों ने, राइट? जो हम लोग का आज का मास्टर क्लास भी है, एक्मा, ईएस एक्मा स्क्रिप्ट, करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा कोड लेके चले गए इस यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के पास। तो इनका काम क्या था, ये जो पूरा कोड लेके गए और इसमें जो एक्मा था उसका काम क्या था, उनका काम सिर्फ इतना था कि एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना। अब उनके स्टैंडर्ड में आता क्या है कि कोई भी क्लाइंट साइड के लिए काम होगा, कोई भी ब्राउजर बनाएगा, ठीक है, कोई भी ब्राउजर बनाएगा, उसके इंजन्स बनाएगा, उनको कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसको वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, एक फंक्शन बनाना है तो उस फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो ये सारे स्टैंडर्ड बनाने का काम किसने किया? एक्मा ने। एक्मा ने क्या किया, स्टैंडर्ड बना दिए और सबको, मतलब पूरी दुनिया को ही बता दिया कि कोई भी ब्राउजर आप बनाओ तो उनको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। जो आज के टाइम पे हम लोग एक्मा स्क्रिप्ट, एडवांस जावा, ये एडवांस जावा स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड्स है। स्टार्टिंग में एक्मा ने बनाया कुछ स्टैंडर्ड्स, वो फॉलो हुए। फिर एक्मा ने रियलाइज किया कि इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं, वो ऐड करके उसमें उन्होंने एक और वर्जन बनाया। फिर उसमें ऐड करके एक और वर्जन बनाया, ऐसे ES5 तक आया। ES5 काफी फेमस था, काफी स्टेबल था, तो वो बहुत टाइम तक चला। ठीक है, फिर रियलाइज किया कि अब इसको और कुछ अच्छा करना चाहिए। ठीक ठीक है। यहाँ तक समझा कि एक्मा क्या है। हम लोग जो ES बोलते हैं, एक्मा स्क्रिप्ट बोलते हैं, ये कोई टेक्नोलॉजी या कुछ लैंग्वेज नहीं है। ये सिर्फ क्या डिफाइन करता है, स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। किसके लिए? जावा स्क्रिप्ट के लिए। और क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए? स्टैंडर्ड्स मतलब कि हर वो एक ब्राउजर जो बनता है उसको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, ताकि एक प्रोग्राम लिखे हम लोग और वो सारे ब्राउजर्स में चले, ना कि हम लोग सारे ब्राउजर्स के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग करें। ठीक है, तो ये एक्मा ने ये सारे स्टैंडर्ड डिफाइन किए, फिर ईएस बना। फिर ईएस के बाद जब ईएस, उसको एक स्टैंडर्ड ES5 तक आया, 5 फिर काफी स्टेबल चला। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ओ, अब इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स है। जैसे जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हम लोग को उसके फीचर्स पता चलेंगे। उसमें से एक फीचर है जिसमें वेरिएबल्स को रिलेटेड होता है, कुछ है। ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स है जो रियलाइज किए कि ये एक्चुअली में ड्रॉबैक्स नहीं है, बट इसको करने का एक अलग तरीका है, जिससे क्या होगा, एरर्स काफी कम होंगे। जो हम लोग के कोड में मेमोरी लीकेज होता है, वो सारी चीजें कम होंगी। तो उन्होंने क्या किया, उसको और एक स्टैंडर्ड ऐड किया।
ठीक है, उस वर्जन को अपग्रेड किया और उसको नाम दिया ES6। ठीक है, फाइव था वर्जन, एक वर्जन 5 था, फिर एक वर्जन 6 आया। तो इसमें क्या हुआ, जो भी 5 में ड्रॉबैक्स थे, या फिर जो 5 में लगे कि इस चीज को करने के लिए और भी बेटर तरीका है, तो उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें ES6 में ऐड कर दी। तो ES5 ES6 कुछ अलग नहीं है। जो कोड ES6 में चलेगा वो ES5 में चलेगा क्या? चलेगा? यस। हाँ। नहीं ना। हम लोग नहीं। पीछे, मैंने पीछे पूछा, मैंने ES5 का ES6 में नहीं पूछा। ठीक है, ट्रिक था थोड़ा, बट गुड। तो क्या है, ES5 के जो कोड्स थे वो ES6 में चलेंगे, यस चलेंगे। बट ES6 में उसको करने का एक और तरीका है, वो भी चलेगा, हाँ चलेगा। बट ES5 का कोड, ES6 का कोड ES5 में नहीं चलेगा। ठीक है, तो ब्राउजर्स को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आपने देखा होगा कुछ चीजें ब्राउजर्स में नहीं चलती है, ब्राउजर्स में एक अपग्रेड आता है, तो आप लोग को वो अपडेट करना पड़ता है ना ब्राउजर। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो इंजन्स है, वो इंजन्स में जो कोड को कंपाइल करने का या फिर कोड को इंटरप्रेट करने का, रीड करने का जो चीजें उस इंजन्स में बिल्ड की गई है, वो अपडेट होता है। इसीलिए हम लोग को क्रोम अपना ब्राउजर अपडेट करना पड़ता है ना। करेक्ट। तो वो सारे स्टैंडर्ड्स को लेके आए, फिर ये सारे एक्मा ने बनाए। अब एक्मा और अपग्रेड होता रहेगा, हो सकता है हम लोग को नेक्स्ट ईयर में कोई और वर्जन आ जाए। ठीक है। ऐसे ऐसे एक्मा स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता रहेगा, हम लोग अपने ब्राउजर्स को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। तो ये था पूरा जावास्क्रिप्ट का जर्नी, कि उसने कैसे, जावास्क्रिप्ट कैसे मार्केट में आया, कैसे फ्रंट एंड को जावास्क्रिप्ट ने कैप्चर किया इंटरैक्टिव बना के। फिर एक्मा का क्या रोल है, एक्मा कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, एक्मा का रोल है सिर्फ स्टैंडर्ड डिफाइन करना। तो जितने भी ब्राउजर्स बनते हैं, अब क्रोम, अब क्रोम किसका प्रोडक्ट है? गूगल का, राइट। क्रोम गूगल का प्रोडक्ट है, सफारी किसका प्रोडक्ट है? एप्पल का। तो इन दोनों को भी एक स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा ना, कि एक कोड जो हम लोग लिख रहे हैं वो दोनों में चले। या अलग, अगर दोनों ने अलग कर दिया, तो सोचो आपने इतना महंगा एप्पल का लैपटॉप खरीदा, बट किसी ने प्रोग्राम किया है क्रोम के लिए, तो वहां पे भी आप वही यूज कर रहे हो, क्रोम इंस्टॉल कर रहे हो, फिर गूगल का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए सारे जितने भी ब्राउजर्स है, उनको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है, और वो स्टैंडर्ड आता है एक्मा से। क्लियर है? पक्का एकमा समझ रहा है? हम लोग एकमा पे आगे जब कोर्स होगा तो काफी बातें करेंगे कि एकमा के क्या है, कैसे, क्या क्या चेंजेस है इसमें। ठीक है। अब अब हम लोग, बहुत सबसे ज्यादा फेमस ब्राउजर कौन सा है? क्रोम है। करेक्ट। अब एक फ्रंट एंड के लिए सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? जावास्क्रिप्ट है। यार, फ्रंट एंड के लिए और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना है किसी ने? है, किसी ने सुना है? रिएक्ट है, शिफ्ट है, टाइपस्क्रिप्ट है, पाइथन भी है शायद। और किसी ने कुछ? और है कोई, किसी ने कुछ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुना है? ठीक है। सर पाइथन। पाइथन फ्रंट एंड के लिए। कंटेंट भी हो सकता है क्या प्रोग्रामिंग? सॉरी, सर कौन क्या सा? पाइथन से फ्रंट एंड भी कर सकते हैं? नहीं, फ्रंट, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों ने सुना है क्या? नहीं ना। पाइथन बैकएंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए नहीं। ओके। फ्रंट एंड के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, जो सबसे फेमस और यूज कर रहे हैं, कोई और किसी लैंग्वेज को प्रेफर ही नहीं करता है। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट। अगर फ्रंट एंड को इंटरैक्टिव बनाना है, ठीक है, फ्रंट एंड में होता क्या है, ओके। HTML CSS, उसको हम्म। इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्रोम ने भी रियलाइज किया, क्रोम ने भी अपना एक ब्राउजर बनाया, और क्रोम ने अपना एक इंजन बनाया। अब ब्राउजर बनाया तो इंजन भी बनाना ही पड़ेगा उसे। तो उसने अपना एक इंजन बनाया क्रोम का। क्रोम के इंजन का नाम है V8। सुना है किसी ने V8 इंजन? बट आप, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना है कोई बात नहीं, हम लोग इस पर पढ़ेंगे। बट इंजन का काम क्या है, ये तो क्लियर है ना आपको? ये जो इंजन्स बने हुए जावास्क्रिप्ट में, ये ब्राउजर्स पे, उस इंजन का काम क्या है? कन्वर्ट करना। क्या कन्वर्ट करना? हमें अब जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड है मतलब कहाँ पे? ब्राउजर है, तो ब्राउजर में ही वो रन करेगा ना। तो इंजन्स कहाँ पे होंगे?
वो ब्राउजर्स में होंगे, लैपटॉप में नहीं होंगे। अब अगर हम लोग कोई बैकएंड की बात करते हैं, पहले ठीक है, पहले फ्रंट एंड की बात करते हैं। तो फ्रंट एंड में क्लाइंट साइड है। तो क्लाइंट साइड में क्या है? ब्राउजर है। ठीक है, ब्राउजर में वो सारे वो इंजिन्स है। तो इंजिन्स का काम क्या है? कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना? हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि जावास्क्रिप्ट चलेगा कैसे, कैसे चलता है फ्रंट एंड पे? क्लियर है सबको? पक्का? यस सर। कुछ डाउट? अमित, कुछ डाउट? साहिल, कुछ डाउट? नो सर। ओके, ठीक है। तो ये हम ये बात हो गई हमारे इंजिन्स की, और ये उसको कन्वर्जन मेथड की। वो सारा कोड हम लोग को ये नहीं पढ़ना है कि इंजन कैसे चलता है, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इंजन है जिसका काम है ये सारा कन्वर्जन करना। ठीक से? ठीक है, इंजन कैसे अंदर कैसे चलता है, अंदर क्या लिखा हुआ है, वो हम लोग को पढ़ना नहीं है, वो बना दिया है, वो यूज करना है हम लोग को। हम लोग को क्या सीखना है कि जावास्क्रिप्ट कैसे चलता है, जावास्क्रिप्ट के हर एक कोड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट चलता कहाँ है? क्लाइंट साइड पे चलता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, क्लाइंट ये क्लाइंट साइड का जो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ये बहुत फेमस होता गया। ठीक है, एक मेन रीजन इसके फेमस होने का ये है कि वो बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल हो रहा है फ्रंट एंड के लिए। दूसरा ये है कि इसको सीखना काफी इजी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत इजी है। तो इन्होंने क्या किया, रियलाइज किया कि अगर ये इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है, इतना इजी है, तो इसको सिर्फ फ्रंट एंड तक क्यों रखना है? ठीक है, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है, सिर्फ फ्रंट एंड के लिए ही बना है। बट इन्होंने रियलाइज किया कि अगर ये इतना अच्छा है, इतना इजी है, तो इसको फ्रंट एंड तक क्यों रखें, इसको हम लोग बैक एंड पे भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसको बैक एंड पे लेके आए। अब बैक एंड होता क्या है? ठीक है, इसको समझो, बैक एंड होता क्या है। फ्रंट एंड में हमारा ब्राउजर आ गया। ठीक है, अब बैक एंड क्या होता है? एक सर्वर होता है। ठीक है, अब वो सर्वर होता क्या है? फ्रंट एंड में ये क्लियर है, फ्रंट एंड मतलब ब्राउजर, जो क्लाइंट साइड होगा, जो क्लाइंट इंटरैक्ट करेगा, वो होता है फ्रंट एंड, जिसपे यूजर्स आएंगे। बैकएंड एक ऐसी चीज है, बैकएंड नाम से ही बैकएंड है, मतलब वो पीछे होने वाली चीज है। वो यूजर को पता नहीं होगी कि उस पे क्या हो रहा है, ना यूजर देख सकता है उसको। जो फ्रंट एंड में जो भी है उसको यूजर देख सकता है, अगर उसको पता है कि अंदर क्या है। एक डेवलपर है जिसको डिकोडी डिबगिंग आती है, वो देख सकता है कि फ्रंट एंड पे हो क्या रहा है। बट बैकएंड वो नहीं देख सकता, क्यों? क्योंकि बैकएंड पीछे काम कर रहा है। अब बैकएंड है क्या? बैकएंड एक सर्वर है। तो एक सर्वर क्या होता है? सर्वर भी एक मशीन होता है। ठीक है, सर्वर मतलब क्या? एक मशीन। अगर मैं बोलूं कि मैं इस पे बैकएंड की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ मेरे लैपटॉप पे, तो मेरा लैपटॉप क्या है? एक मशीन है। और इस पे मैं अगर प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेरा सर्वर हो गया। और ये कौन सा सर्वर हो गया? लोकल सर्वर हो गया। क्लियर है? समझा? तो सर्वर होता क्या है? एक मशीन ही होता है। वो कुछ ऐसा, कुछ इमेजिनरी कुछ है नहीं, कुछ ऐसा हवा में नहीं है। वो क्या है? एक फिजिकल मशीन ही है। ठीक है, एक फिजिकल मशीन है, तो उस मशीन में क्या होगा? स्टोरेज होगा उसके, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, उसमें सॉफ्टवेयर्स होंगे। ये सारी चीजें किस में आएगी? सर्वर में ही आएगी ना। क्लियर है? तो बैकएंड क्या होता है? एक सर्वर ही होता है, एक मशीन होता है, जिसपे क्या होगा? हमारा कोड रन होगा। ठीक है, अब हमारे केस में जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट को रियलाइज किया पावरफुल है, उसको लेके जाते हैं बैकएंड पे। तो बैकएंड पे लेके जाना मतलब, अब तक जावास्क्रिप्ट कहाँ चल रहा था? कहाँ चल रहा था बताओ? यस, फ्रंट अब एंड पे। तक फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे मतलब ब्राउजर में। तो उसका जो इंजन था, जो इसका कन्वर्जन कर रहा है, वो कहाँ पे था? फ्रंट एंड पे ही था ना। फ्रंट एंड पे। राइट, मतलब ब्राउजर में ही था। अब इसको हम लोग बैकएंड पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, बैकएंड पे अगर इसको हम लोग लेके आ रहे हैं, एक मशीन, बैकएंड मतलब एक मशीन, मशीन पे अगर हम लोग इसको चला रहे हैं, तो वहां पे भी हमको क्या जरूरत पड़ेगी? हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं उसको कन्वर्ट करने की जरूरत बैकएंड पे भी पड़ेगी ना। राइट? राइट, उसको कन्वर्ट करना अभी भी जरूरत पड़ेगा ना। पड़ेगा ना? कुछ आंसर करो।
ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा इंटरैक्टिव रखते हैं। आप लोग भी कुछ आंसर जो भी है, खुद डरो मत। नहीं पता है तो नहीं पता है, नहीं पता है तो इसीलिए तो आप लोग सीखने आ रहे हो। ठीक है, बट फील फ्री, जितना आप इंटरेक्टिव बनाओगे उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अब बैकएंड पे रन करना है। बैकएंड पे फिर क्या जरूरत है इसको कन्वर्ट करने की? किसमें कन्वर्ट करने की? किसमें कन्वर्ट करने की? बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज में। में। यस, करेक्ट। तो सेम हम लोग को इंजन यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, बट वो अब तक जो इंजन बनी है वो चल कहाँ रहा है? वो फ्रंट एंड पे चल रहा है, जो अपना ब्राउजर है। बट उसको वापस से एक मशीन पे चलाना है। ठीक है, तो इसीलिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जिसमें हम लोग का जो इंजन है, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है, ठीक है। क्रोम का V8 इंजन जो था वो काफी काफी पॉपुलर, इसीलिए क्रोम आज का सबसे फेमस ब्राउजर है ना। क्योंकि उसने जो इंजन बनाया उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे डाले जिससे काम बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए कंपेयर करोगे अगर दूसरे ब्राउजर से, तो क्रोम ब्राउजर थोड़ा ज्यादा फास्ट चलता है, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स कुछ अच्छे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो क्रोम का V8 इंजन उठा लिया। फिर बैकएंड यानी कि एक मशीन पे उसका एक रन टाइम एनवायरनमेंट बनाया। उस एनवायरनमेंट में काम क्या होता है? सिर्फ हम लोग का जो फ्रंट एंड लैंग्वेज है, जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, उसको एक मशीन पे रन करना, क्योंकि वो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। ठीक है, रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसमें वो कन्वर्जन होगा किसमें? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में, और वो चलेगा कहाँ? एक मशीन पे। अब उसको एक ब्राउजर की जरूरत नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को रन होने के लिए, फ्रंट एंड लैंग्वेज को रन होने के लिए एक ब्राउजर की जरूरत नहीं है। वो अब चल रहा है एक मशीन पे। क्यों? क्योंकि वैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, जिस वजह से हम लोग का जो फ्रंट एंड लैंग्वेज है वो बैक एंड पे भी चले। ठीक है, तो ये जो रन टाइम एनवायरनमेंट था वो क्या है? नोड जेएस। ठीक है, तो नोड जेएस अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नोड.जेएस सिर्फ क्या है? एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, जो करके क्या दे रहा है हम लोग को? हम लोग का जो फ्रंट एंड लैंग्वेज था जावास्क्रिप्ट, उसको एक बैकएंड पे चला रहा है, एक मशीन पे चला रहा है। क्लियर है? तो नोड.जेएस कुछ अलग लैंग्वेज नहीं है, उसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। पूरा कोड किस में करेंगे? जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को ही रियलाइज किया था ना कि इतना अगर स्ट्रॉन्ग पावरफुल लैंग्वेज है, तो इसको फ्रंट एंड पे क्यों लिमिट करना है, इसको बैक एंड पे भी लेके जाते हैं। तो इसी से उन्होंने क्या किया, उसका रन टाइम एनवायरनमेंट बैकएंड पे बनाया, उसको नाम दिया नोड जेएस। और इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे भी रन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है पक्का यहाँ तक? जावास्क्रिप्ट बैकएंड पे आया कैसे? जावास्क्रिप्ट को अभी भी हम लोग अगर बोले, तो जावास्क्रिप्ट के डेफिनेशन में क्या आता है? जावास्क्रिप्ट इज द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्या आता है? जावास्क्रिप्ट इज द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बट अभी ये चल कहाँ रहा है? फ्रंट एंड पे तो चल ही रहा है, बट इसको बैक एंड पे भी लेके आए, तो ये क्लाइंट साइड रह गया क्या? नहीं रह गया। कहाँ, ये कौन सा साइड चला गया? सर्वर साइड। क्यों? क्योंकि वो रियलाइज किया गया था उसकी पावर, तो उसको फुल स्टैक करने के लिए उसको हम लोग कहाँ लेके आ गए? बैक एंड पे भी लेके आए। तो आप लोग अगर सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पढ़ते हो, तो उससे क्या होगा? आप फ्रंट एंड भी कर सकते हो, आप बैक एंड भी कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है पक्का? फ्रंट एंड और बैक एंड होता क्या है? किसी को डाउट? फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे आप प्रोग्रामिंग सीखने चलते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है, ECMAScript स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है, सर्वर क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये अब मैं फ्रंट एंड बैक एंड बोल रहा हूँ, फिर ब्राउजर सर्वर बोल रहा हूँ, ये है तो एक ही चीज ना। राइट? क्लाइंट साइड के लिए ब्राउजर है, बैक एंड के लिए सर्वर, नाम बोल रहे हैं हम लोग। है तो एक ही चीज, बट आपको पता होना चाहिए कि इनको अलग अलग नाम दिया हुआ है सर, काम तो एक ही है उनका। ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट हमारा चल कहाँ रहा है? सिर्फ क्लाइंट साइड चल रहा है? नहीं, कहाँ चल रहा है? क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। फिर ऐसे ही करके डेटाबेसेस भी थे। अब डेटाबेस में कोई डेटाबेस का नाम सुना है किसी और ने? किसी ने? कितने डेटाबेस के नाम सुने हैं? और डेटाबेस होता क्या है? किसी को कुछ आइडिया? माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया। हो गया, करेक्ट। और कोई? और कोई? किसी ने कोई डेटाबेस का नाम सुना है, या कुछ आइडिया कि डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस के अंदर हम जो भी डेटास होते हैं ना वो स्टोर कर सकते हैं। करेक्ट, जैसे नाम है उसका डेटाबेस, तो वहां पे उस बेस में हम लोग स्टोर क्या कर रहे हैं? डेटा स्टोर कर रहे हैं ना।
अभी आप लोग एक वेबसाइट है जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, आप अपना इंफॉर्मेशन भरते हो ना, तो आप अपना अपना क्या दे रहे हो फेसबुक को, डेटा दे रहे हो, राइट। उस डेटा को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप एक बार आप रजिस्टर करते हो, नेक्स्ट टाइम क्या करते हो, लॉगिन करते हो ना, तो लॉगिन करोगे, आप अपना इंफॉर्मेशन भरोगे, तो उसको चेक करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, डेटाबेस पे जाना पड़ेगा, करेक्ट। तो डेटाबेस है क्या, एक जगह है जहाँ पे हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक एप्लीकेशन के लिए उसका डेटा स्टोर कर रहे हैं। ऐसे ही काफी सारे डेटाबेस है, जैसे नाम लिया अभी हिमांशु ने कि माई सिक्वल है, पोस्टग्रेस है, ऐसी ओरेकल भी है, ठीक है। ऐसी ही एक डेटाबेस है मोंगोडीबी। तो अब मोंगोडीबी है क्या, ठीक है, तो सबसे पहले समझो माई सिक्वल। माई सिक्वल क्या है, सिक्वल एसक्यूएल, माई एसक्यूएल बोलते हैं ना, एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मतलब उस उसका जो क्वेरीज है उसको लिखने का एक स्ट्रक्चर में देता है वो, ठीक है। मतलब उसका एक जो टेबल्स कॉलम्स, अब हम लोग डेटाबेस में स्टोर कैसे करते हैं, सबसे पहले टेबल बनता है, अगर यूजर इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो उसके लिए एक टेबल बनाओगे आप, उसका नाम क्या रखोगे, यूजर रखोगे, फिर उसके अंदर फील्ड्स होंगी। अब अब जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डेटा देते हो आप अपना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ये सारी चीजें देते हो ना। तो ये सारी चीजें ऐसी एक साथ थोड़ी ना जोड़ के रख देंगे फिर अगले टाइम गेस करो कि कौन सा क्या था, वैसे नहीं करेंगे ना। इसके लिए क्या होता है, एक टेबल होता है, ठीक है। उसमें एक टेबल होगा जो जो डिफाइन करेगा कि इसके अंदर कौन सा डेटा जाना चाहिए। जैसे यूजर का हो गया, आप लोग एक रजिस्टर करो तो आप एक यूजर हो, तो यूजर का हो गया, तो उस टेबल का नाम क्या होगा, यूजर टेबल। उसके अंदर फिर फील्ड्स होंगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉलम, क्लियर है, कॉलम होगी। तो उसमें क्या होगा, कॉलम के नाम क्या होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे करके कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। तो उस कॉलम्स में क्या आएगा, आपका जो भी रेस्पेक्टिव डेटा था। अब फर्स्ट नेम में आप ईमेल थोड़ी ना स्टोर करोगे, राइट, फर्स्ट नेम में क्या जाएगा, फर्स्ट नेम में जाएगा, तो वैसा एक आप पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाएंगे। उसके अलावा कुछ आप और डालने जाओगे तो वो क्या करेगा, आपको एरर देगा, ठीक है। जैसे आपके स्ट्रक्चर में डिफाइन किया, आपने एक यूजर टेबल बना दिया, उसका स्ट्रक्चर बना दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब आपने क्या रियलाइज किया कि हम लोग को यूजर का एड्रेस भी लेना है, तो आपने एड्रेस यूजर से तो ले लिया, बट उस स्ट्रक्चर में लिखा ही नहीं है कि एड्रेस स्टोर होना चाहिए कहीं पे, ठीक है। अब डायरेक्टली स्टोर करने जाओगे तो क्या एरर रिटर्न करेगा वो, कि स्ट्रक्चर में है ही नहीं। आप लोग एक ऐसा कॉलम यूज करना चाह रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर, मतलब जो चीजें टेबल में आपने डिफाइन की है आप उन्हीं उसी चीज को यूज कर सकोगे। दूसरा होता है नो स्ट्रक्चर। अब मोंगोडीबी होता है नो सिक्वल, जो हम लोग बोलते हैं नो एसक्यूएल, ठीक है। इसमें क्या होता है, नो एसक्यूएल का मतलब नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब इसमें स्ट्रक्चर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे जैसे पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर तो हम लोग इसमें भी डिफाइन कर रहे हैं, बट इसमें वो ऐसा फोर्स नहीं कर रहा आपको, ठीक है। नो सिक्वल मतलब आपको फोर्स नहीं करता है कि आपको ये स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, इसके अलावा आप कुछ और दोगे तो मैं स्टोर नहीं करूंगा। नो सिक्वल ऐसा नहीं बोलता है, नो सिक्वल बोलता है कि आप मेरे को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दे दो, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी मैं स्टोर करूंगा, एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं क्रिएट करके स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो नो सिक्वल यही बोलता है कि अगर आप लोग ने एक यूजर आया, फर्स्ट टाइम यूजर आया जिसका लगा ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ, इतनी चीजें स्टोर कर दी, फिर आपने रियलाइज किया ओ अब इसमें एड्रेस भी डालना चाहिए, तो आप लोग ने यूजर से वो एड्रेस भी लिया और स्टोर करने गए, तो नो सिक्वल आपको एरर रिटर्न नहीं करेगा। नो सिक्वल क्या करेगा, चुपचाप वो एड्रेस स्टोर कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर नहीं है। नो सिक्वल आपको फोर्स ही नहीं करेगा क्योंकि पहले स्ट्रक्चर बना, ठीक है। माई सिक्वल या फिर कोई और जो स्ट्रक्चर डेटाबेस है वो क्या करेगा, पहले आपको फोर्स करेगा कि आप पहले इसका एक स्ट्रक्चर बनाओ। अगर आपने सिर्फ 5 रखे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, और एड्रेस स्टोर करना चाह रहे हो, तो सिक्वल बोलेगा कि आप एक काम करो, अगर करना है तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर में उसको वापस से डिफाइन करो, तो आप उसमें एक और कॉलम ऐड करोगे, सबसे पहले ऐड करोगे फिर उसको सेव कर पाओगे। बट नो सिक्वल ये चीज नहीं बोलता है, नो सिक्वल बोलता है आपको ऐड करना है, ठीक है, आप ऐड करो, मैं अपने आप सेव कर दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए बनाया गया नो सिक्वल, ताकि जहां भी हमारा सिचुएशन ऐसा आता है कि हमें पता ही नहीं है कि डेटा कब चेंज हो जाएगा,
और कौन से नए फील्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, मोस्टली ये काम कब होगा, इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ठीक है, अब समझो कि कब स्ट्रक्चर्ड यूज करना है, कब नॉन स्ट्रक्चर्ड यूज करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कब यूज करोगे, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब बैंक का डेटा समझ रहे हो आप कितना कितना ज्यादा रिस्की होता है, कितना ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए उसमें। उसमें कुछ भी अलग डेटा नहीं आना चाहिए। तो उस चक्कर में, और बहुत सारे रिलेशन होते हैं ना, आपका एफडी अकाउंट बनेगा, ये बनेगा, सारे रिलेट होगा, उनका रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब बैंक का डेटा बेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, राइट। और उसमें कैसा होगा, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कुछ भी डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। पैसे की बात आ रही है, तो उसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस यूज करेंगे। बट अगर सपोज आप लोग एक यूजर एक्टिविटी ट्रैक करना चाह रहे हो, किसी ने आपकी यूजर आपकी साइट पे आके कहाँ कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजें वो पता नहीं होगी ना, आपको यूजर कौन से पेज पे है, कहाँ जाएगा। तो इस चीज के लिए क्या कर सकते हो, मोंगोडीबी यूज कर सकते हो। वो सारी एक्टिविटी आप लोग कहाँ मेंटेन कर सकते हो, मोंगोडीबी में। तो एक एप्लीकेशन अगर बनता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही डेटाबेस लेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बैंकिंग एप्लीकेशन बन रहा है तो बैंकिंग एप्लीकेशन सिर्फ एक डेटाबेस पे चलेगा। एक डेटाबेस तो उसका होगा ही जो स्ट्रक्चर्ड होगा, वो पोस्टग्रे हो जाए या ओरेकल हो जाए। वो एक डेटाबेस तो मेंटेन करेगा जिसमें स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर है, उसी में आएगा। बट अगर बैंकिंग में भी अगर उसको ऐसा कुछ रखना है कि यूजर की एक्टिविटी मेंटेन करना है, कि अभी ओके वो प्रोफाइल पे गया, फिर वहां गया, तो ये इसके लिए वो स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकता। इसके लिए वो क्या कर लेगा, मोंगोडीबी यूज कर लेगा। तो एक एप्लीकेशन बहुत सारे डेटाबेस यूज कर सकता है। अब वो कौन से डेटाबेस यूज करेगा ये डिपेंड करता है उसके यूज केस पे। क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है क्यों मोंगोडीबी यूज करेंगे, क्यों माई यूज करेंगे, बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, कुछ डाउट यहाँ तक? नो सर। नो, ओके परफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया ये हो गया हमारा ओवरऑल पूरा मन स्टैक होता क्या है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इसमें जो चीज सीखेंगे वो है क्या, एक हाई लेवल में है क्या, जैसे फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। आप लोग अगर प्रोग्रामर बनने जा रहे हो तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, फिर आप प्रोग्रामिंग में एंजॉय कर पाओगे। कि अगर मैं बोलूँ प्रोग्रामिंग कर सीखते सीखते कि अरे ये फ्रंट एंड पे ये है, आप लोग को फ्रंट एंड पे लिखना है, ये चीज बैक एंड पे जानी चाहिए। ठीक है तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अब इसके अंदर मोंगोडीबी बना, ठीक है, उसका एक फॉर्मेट है। ठीक है, जैसे एक समझ लो जेसॉन करके एक फॉर्मेट है जिसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, इसीलिए इसीलिए वो जावास्क्रिप्ट के साथ रिलेट हो पाया ना। अब जरूरी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के साथ रिलेट हो गया, मोंगोडीबी में जेसॉन फॉर्मेट आ गया तो वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट से चलेगा, ऐसा नहीं है। वो एक किसी भी चीज के साथ चल सकता है, किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ चल सकता है, पाइथन के साथ चल सकता है, वो पीएचपी के साथ चल सकता है। बट क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट को लेके बनाया गया है इसीलिए ये मॉन्स्टैक में पूरा आता है और इतना फेमस हो रहा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का यूज हम लोग डेटाबेस में भी कर पा रहे हैं। समझ रहा है कि बना जो एक लैंग्वेज सिर्फ क्लाइंट साइड के लिए बनी थी, अब वो बैकएंड पे भी चल रही है, डेटाबेस के लिए भी चल रही है, सब जगह चल रही है। ठीक है, क्लियर है। तो समझा जावास्क्रिप्ट है क्या, हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखना भी क्यों चाहिए। एक तो कि अगर आप बैकएंड भी करते हो तो आपको रियलाइज होगा, जैसे आप सिर्फ बैकएंड सीखना चाह रहे हो तो बैकएंड में कौन सी लैंग्वेज आ गई, पाइथन आ गया, जावा आ गया, पीएचपी आ गया। बट आपको ऐसे टाइम के बाद रियलाइज होगा कि हम लोग को थोड़ा ब्राउजर का भी पता होना चाहिए, हम लोग को फ्रंट एंड भी पता होना चाहिए, तो आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे। ठीक है, बट अगर आपका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही फ्रंट एंड है तो आप फ्रंट एंड सीखोगे, जावास्क्रिप्ट सीखोगे। फिर अगर आपका इंटरेस्ट फ्रंट एंड से हटके बैक एंड पे भी जा रहा है तो आप लोग को एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट यूज करके ही बैकएंड भी लिख सकते हो। समझ रहे हो? और नोड अभी काफी फेमस है, अगर आप लोग ने रिसर्च किया होगा तो नोड अभी काफी फेमस है, बहुत सारे एप्लीकेशन नोड यूज कर रहे हैं। अब वो क्यों फेमस है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसा बनाया होगा ना। अब एक चीज है हम लोग ने जो डेफिनेशन में मिस की, हम लोग ने डेफिनेशन क्या बोली जावास्क्रिप्ट की, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बट इसमें एक और चीज आती है, सिंगल थ्रेडेड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या है, ये जब आप लोग इसमें डीप जाओगे तो समझेगा कि सिंगल थ्रेडेड मतलब क्या होता है, मल्टी थ्रेड मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर सिंगल थ्रेड है, मल्टी थ्रेड है, तो कौन सा फेमस है। अब अगर सिर्फ हम लोग थ्रेड की बात करते हैं, ठीक है, अब थ्रेड होता क्या है, अगर हम लोग कंप्यूटर्स के टर्म में बात करें तो थ्रेड क्या होता है, सीपीयू का एक कोर होता है जो आपका एक काम करके देगा। ठीक है, जो आप लोग कुछ भी लिखोगे कोड, वो प्रोसेस होना चाहिए ना।
उसको करने के लिए सीपीयू की जरूरत तो पड़ेगी। अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है तो काम कौन कर रहा है? अपना मशीन कर रहा है ना, जो सीपीयू है। ठीक है। अपना मॉनिटर थोड़ी ना कुछ काम करता है। कंप्यूटर में काम कौन करता है? सीपीयू करता है ना। सीपीयू का एक कोर तो समझो पीएचपी हो गया। सपोज पीएचपी में 300 थ्रेड है, बट जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेड है। तो फास्ट कौन सा होगा? जावास्क्रिप्ट होगा, पीएचपी होगा कंपैरिजन में? क्या लगता है, एक सिंगल थ्रेड फास्ट होगा कि 300 थ्रेड फास्ट होंगे? तो क्या लगता है आप लोग को? बोलो कुछ केस। कम ऑन, नींद आ रहा है? तो वैसे तो फास्ट 300 को होना चाहिए। 300 का होना चाहिए, ठीक है। बट सिंगल थ्रेड पे ज्यादा अगर 300 पे फास्ट है और अपने पास सिर्फ एक थ्रेड है जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट तो फास्ट नहीं हुआ ना यार। तो मतलब क्या हुआ इसको यूज करने का, अगर फास्ट ही नहीं है? अगर एक वेबसाइट पे जाओगे और सिर्फ क्रिकेट का स्कोर देखोगे, स्कोर आने के लिए ही अगर वो आपको 10 मिनट दे दे, 10 मिनट में तो पूरा मैच बदल जाता है। तो मतलब क्या हुआ? ठीक है। तो ये सिंगल थ्रेड तो है, बट सिंगल थ्रेड की वजह से कैसा फेमस है, कैसे फास्ट है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आता है इसके सिंक्रोनस असिंक्रोनस में। तो जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन अभी और बदल रही है, ध्यान से सुनो। अब तक हम लोग ने क्या बताया? जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब हम लोग ने क्या बोला? जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड सिंगल थ्रेडेड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। बट अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। एक बार साथ में अपने मन में रिपीट कर लो आप लोग। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट? जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। एक एक बार रिपीट करके ये डेफिनेशन याद रखो। फिर इन डेफिनेशंस में ऐसा लगेगा कि ड्रॉबैक है, बट ये एक्चुअली ड्रॉबैक नहीं है। इसका इसका क्या इसको इन्होंने कैसे यूज करके इसको फेमस बनाया। ठीक है। सबसे पहले सिंक्रोनस का मीनिंग समझो। ठीक है, सिंक्रोनस है क्या? ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? एक बार वापस शेयर करता हूँ। चलो, बहुत नॉलेज हो गया, बहुत बोरिंग हो रहा है। एक काम करते हैं, एक रेस्टोरेंट चलते हैं। ये हुआ हमारा एक रेस्टोरेंट। ठीक है। अब रेस्टोरेंट में होता क्या है? टेबल होता है। टेबल से ऐसे करके टेबल्स बनाते हैं। ठीक है। अब रेस्टोरेंट में टेबल्स है। कहीं पे कुछ डाउट लगे तो बोलना। अब रेस्टोरेंट में, ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में क्या होगा? टेबल होगा। और क्या होगा? किचन होगा ना? किचन होगा नहीं होगा रेस्टोरेंट में? ऑफ कोर्स हो सर। भी होगा ऑफ सर। कोर्स होगा। ठीक है। अब एक काम करते, हम लोग इसको समझते हैं। इसमें रेस्टोरेंट है, इसमें किचन है। अब किचन में, अब रेस्टोरेंट में और क्या होगा? वेटर होगा। ठीक है। अब वेटर होगा तो वेटर क्या करेगा? अब सपोज टेबल नंबर 1 पे आया, वेटर आया टेबल नंबर 1 पे। ठीक है। अब टेबल नंबर 1 ने उसको कुछ ऑर्डर किया, चलो कुछ ऑर्डर करो। क्या ऑर्डर करोगे पहले बताओ? बताओ क्या ऑर्डर करोगे? सबसे करो, कुछ ऑर्डर पहले करो। पेस्ट्री हाँ, ऑर्डर करें सर। पेस्ट्री सुबह सुबह, ठीक है, चलो पेस्ट्री ऑर्डर करते हैं। इस पे क्या किया? वेटर आया इस टेबल पे, इस टेबल ने क्या ऑर्डर किया? पेस्ट्री ऑर्डर किया। तो वेटर क्या करेगा? इसका रिक्वेस्ट लेगा और जाएगा कहाँ पे? किचन में। किचन में। किचन में उसका ऑर्डर देगा ना। ठीक है। अब हम लोग सिंक्रोनस से वो सब समझ रहे, ध्यान से सुनो। वेटर आया, ऑर्डर लिया, क्या किचन में, किचन में उसको पेस्ट्री का ऑर्डर दे दिया। ठीक है। अब टेबल 2 के, अब एक ही वेटर है पूरे रेस्टोरेंट में, एक ही वेटर है। ठीक है। ठीक है, पेस्ट्री का ऑर्डर दे दिया। पेस्ट्री अगर बनी बनाई है तो क्या करेगा? उसका ऑर्डर ले लेगा, किचन से डायरेक्टली लाएगा, किसको देगा? टेबल 1 को देगा। और टेबल 1 का काम क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। करेक्ट। अब टेबल 2 पे जाएगा। ठीक है, टेबल 2 से कुछ ऑर्डर करो।
करो, कुछ ऑर्डर करो पेस्ट्री के अलावा। कॉफी ऑर्डर कर रहे हैं। कॉफी ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, चलो कॉफी ऑर्डर किया। ठीक है। अब यहाँ पे कॉफी ऑर्डर कर दिए। अब कॉफी को बनने कुछ टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स तो जाएंगे, कुछ 1-2 मिनट तो जाएगा ही। दूध बॉईल करेगा, उसमें पाउडर डालेगा, मिक्स करेगा। तो उसमें सपोज 2 मिनट गया। ठीक है, अब 2 मिनट गया तो वेटर कितना है, एक ही है। वेटर क्या कर रहा है, किचन के पास वेट कर रहा है, किस बात का वेट कर रहा है कि अरे कॉफी जो ऑर्डर की थी वो बन जाए। वो बन गया, फिर वो क्या करेगा, उसका ऑर्डर लाएगा, किसको देगा, टेबल 2 को देगा। बट ये जो 2 2 मिनट वेट कर रहा था वो, उस दौरान क्या हुआ कि टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6, इन सबका क्या काम है, इन मतलब इन सबको भी ऑर्डर करना है। बट वेटर कितना है, एक ही एक है। ही है। एक ही है, वो एक टाइम पे एक ही काम कर रहा है, वेटर। राइट, एक टाइम पे वो एक ही काम कर रहा है, एक टेबल का ऑर्डर ले रहा है, किचन में जा रहा है और किचन से जाके वापस ला रहा है। तो सपोज कॉफी के बदले अगर इसने ऑर्डर किया होता तंदूरी चिकन, अब तंदूरी चिकन को बनने कितना टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा ना, आधा घंटा भी जा सकता है। राइट, तो आधा घंटा क्या करना पड़ेगा, टेबल 3 और टेबल 4 को वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा, करेक्ट। अब वेट करना पड़ेगा, वेटर कितना है, एक ही है। तो इस चीज में जो हम वेटर है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट के टर्म्स में वो है थ्रेड। क्या है, थ्रेड है। तो थ्रेड। ऐसी करके अगर सपोज 300 वेटर्स होते तो एक टाइम पे कितने वेटर काम कर रहे, 6 वेटर काम कर रहे, बाकी फ्री है। तो कोई और भी आ गया कुछ और पूछने के लिए तो बाकी वेटर्स उसको अटेंड कर सकते हैं, मतलब 300 थ्रेड्स है, एक टाइम पे उतने सारे उसको अटेंड कर ले रहे हैं। ठीक है। बट अभी जावास्क्रिप्ट में एक ही वेटर है, तो वो क्या कर रहा है कि ऑर्डर ले रहा है, सर्व कर रहा है, इस वजह से वो थ्रेड क्या रह रहा है, वो वेटर क्या रह रहा है, बिजी रह रहा है ना हमेशा। राइट, समझो कोई मैच का स्कोर देखने के लिए आएगा, तो एक मोबाइल से एक ने आपने स्कोर पूछा, दूसरे मोबाइल से उसी टाइम पे 100 लोगों ने स्कोर पूछा। और एक स्कोर लाने के लिए, एक स्कोर का रिस्पॉन्स आने के लिए अगर आपको 4 सेकंड लग रहा है, तो जो जो 100 यूजर है उसमें जो लास्ट वाला होगा उसको कितना लगेगा, 400 400 सेकंड ना। 400 सेकंड तो काफी टाइम हो गया। ठीक है, समझ रहा है। तो इसमें एक ही वेटर है, एक ही वेटर ऑर्डर ले रहा है, लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं इसको समझते हैं कि अगर एक ही वेटर है, अभी हम लोग मल्टी थ्रेड तो नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट बना सिंगल थ्रेड है तो सिंगल थ्रेड पे ही चलेगा। और ये जो काम हो रहा है वो हो रहा है सिंक्रोनस, क्या हो रहा है, सिंक्रोनस, ऑर्डर ले रहा है, जा रहा है, उसका ऑर्डर ला रहा है, उसको दे रहा है और खत्म कर रहा है, ये होता है सिंक्रोनस। मतलब एक चीज दूसरे का वेट नहीं करती है, मतलब वो दूसरे टेबल के लिए वेट नहीं कर रहा है, कुछ वेट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट लिया। ठीक है, उसको गया, जैसे स्कोर, अगर हम लोग क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे तो वो उसने आपका स्कोर का रिक्वेस्ट लिया, गया बैकएंड के पास, बैकएंड से कहाँ गया, सर्वर के पास, सर्वर डेटाबेस के पास, डेटाबेस से डेटा लाया और आपको लाके दिया। इस चीज के लिए क्या कर रहा है, वो खुद को पूरे टाइम बिजी रख रहा है जब तक उसका पूरा स्कोर नहीं मिल जाता। सेम चीज यहाँ पे, वेटर अपने आप को क्या रख रहा है, बिजी रख रहा है जब तक उसका ऑर्डर नहीं आ जाता। ठीक है, क्लियर। अब अब सेम चीज, अभी भी हम लोग के पास एक ही वेटर है, जावास्क्रिप्ट में थ्रेड तो नहीं बढ़ने वाला है, अभी भी हम लोग के पास क्या है, एक ही वेटर है। तो टेबल नंबर 1 ने ऑर्डर किया, ठीक है, सपोज इसने ऑर्डर वापस से ऑर्डर क्या किया, पेस्ट्री, पेस्ट्री रेडी था, इसको लाके दिया, खत्म कर दिया, इसका रिक्वेस्ट खत्म। फिर टेबल 2 ने क्या किया, ऑर्डर किया कॉफी। अब कॉफी में क्या होगा, उसको टाइम लगने वाला है, तो इसने क्या किया, इसका ऑर्डर लेके गया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे लाके उसने ऑर्डर दे दिया, किचन ने बोला उसको टाइम लगेगा, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वेट नहीं कर रहा है, वो कहाँ चला गया, टेबल 3 के पास। ठीक है, टेबल 3 का ऑर्डर लिया, टेबल 3 ने सपोज ऑर्डर किया सैंडविच, वो वापस क्या करेगा, इसका रिक्वेस्ट लेके जाएगा, किचन में देगा, वहां पे वेट नहीं करेगा, वो फटाक से किसके पास आएगा, टेबल 4 के पास। टेबल 4 के पास आएगा, उसका रिक्वेस्ट लेगा, उसने कुछ और ऑर्डर किया, से डोसा ऑर्डर किया, वापस जाके रिक्वेस्ट किचन में दे देगा और आएगा किसके पास, टेबल 5 के पास। टेबल 5 के पास आ गया, उसका ऑर्डर लिया, उसने क्या ऑर्डर किया कि पहले सिर्फ पानी लाके दो, तो उसने क्या किया, पानी तो रेडी है, गया लाके दिया, और ये टेबल 5 का ऑर्डर खत्म। मतलब वो काम ऐसा कर रहा है जिसमें वो खुद को ब्लॉक नहीं कर रहा है, बट अगर कुछ ऐसा काम है तो उसी वक्त होके खत्म हो सकता है, तो वो उसको ऐसा नहीं कि उसको दे के उसको वेट कराए, उसको खत्म कर दे रहा है वो और फिर दूसरे के पास जा रहा है। समझा। तो सिंक्रोनस में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही काम होगा और जब तक वो काम खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होगा। एसिंक्रोनस में क्या होता है, एक काम करेगा बट अगर उसको पता है कि इसको टाइम लगने वाला है, तो वो दूसरे इस पे चला जाएगा, दूसरा काम करने लगेगा। फिर अब इस दौरान इसने कॉफी ऑर्डर की थी, इसने सैंडविच, इसने डोसा। ठीक है, अब
इस दौरान कॉफी तो सबसे पहले तैयार हो गया, तो इसको देख के वो खत्म कर देगा। अब पता सैंडविच है और डोसा है। अब पहला ऑर्डर किसने किया? सैंडविच ने। दूसरा ऑर्डर किसने किया? ये डोसा ऑर्डर किया, टेबल 4 ने। तो अगर टेबल 4 का ऑर्डर पहले खत्म होता है, सैंडविच के पहले अगर डोसा खत्म होता है, तो वो ये नहीं करेगा कि पहले ऑर्डर इसने किया है तो इसके लिए वेट करो। वो क्या करेगा? इसको ऑर्डर देके इसको खत्म कर देगा, तो टेबल 4 क्या हो गया? पिक्चर से कट हो गया। ठीक है, समझा? तो एक सिंक्रोनस में क्या होता है कि एक चीज दूसरे चीज के पे, मतलब जब तक पहली चीज खत्म नहीं होगी, दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम लोग कोड के टर्म्स में बात करें, तो जब तक, अगर 100 लाइन का कोड है, तो जब तक लाइन नंबर 4 खत्म नहीं हो रहा है, तब तक लाइन नंबर 5 क्या होगा? एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बट एसिंक्रोनस के टर्म में बात करें, तो अगर उसको जैसे ही पता चलेगा कि लाइन नंबर 4 को टाइम लगने वाला है, वो लाइन नंबर 5 के पास चला जाएगा। लाइन नंबर 5 का काम अगर पहले ही फटाक से खत्म हो जाता है, तो वो क्या करेगा? लाइन नंबर 5 को एग्जीक्यूट करके खत्म कर देगा। बट लाइन नंबर 4 को क्या करेगा? उसको पता है टाइम लगने वाला है, तो उतने देर तक वो उसको काम करने देगा। वो बैकग्राउंड में जो काम चल रहा है उसका चलता रहेगा। फिर वो क्या करेगा? 6, 7, 8, 9 के पास जाएगा। फिर जैसे ही वो फ्री होगा, वो किसके पास आएगा? लाइन नंबर 4 के पास। उसका काम जो हुआ है वो खत्म करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आता है हम लोग का एसिंक्रोनस। और फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट का इंटरनली। अभी हम लोग का जावास्क्रिप्ट हम लोग को पता नहीं इंटरनली कैसा चल रहा है। इसमें कॉल स्टैक है। अभी तो हम लोग ने सिर्फ बेसिक समझा है कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, सर्वर क्या होता है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कैसे होता है। अब सिंक्रोनस एसिंक्रोनस को समझने के लिए जावास्क्रिप्ट में और भी कॉन्सेप्ट्स है, जैसे इवेंट लूप। वो इवेंट लूप को हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें हम लोग ने सीखा, अब जो हम लोग का टॉपिक था कि ES5 वर्सेस ES6 हु विंस। तो ES5 क्या है? चलो अभी आप लोग बताओ। पता हम लोग एंड पे, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे जब हम लोग का बैच स्टार्ट होगा। ठीक है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जावास्क्रिप्ट पढ़ना है इसको। जब डेप्थ में जाके आप लोग पढ़ते हो ना, जब अंदर से समझता है कि ये काम कैसे कर रहा है, तो कोड लिखते हो हम लोग सोचते हैं कि ओ ये लाइन का मीनिंग ये होगा, ये इसको टाइम लगेगा। तो आप लोग अच्छा कोड लिखते हो। कोड, सिर्फ कोड लिखना जरूरी नहीं है, अच्छा कोड लिखना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि एक डेवलपमेंट, जब आप प्रोग्रामिंग में आओगे, तो देखोगे कि 2 साल 4 साल के एक्सपीरियंस में कि किसी को साल का 4 लाख मिल रहा है, एक 2 साल एक्सपीरियंस वाले को किसी को 4 साल का 2 लाख मिल रहा है, 4 लाख मिल रहा है। बट उसी 2 साल एक्सपीरियंस वाले को कहीं किसी को 12 लाख मिल रहा है, किसी को 20 लाख मिल रहा है। ठीक है। तो आप लोग कोड लिखोगे तो आप जॉब पे लग जाओगे, आपको पैसे तो मिलेंगे। बट अगर आपको अच्छा पैसा चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? अच्छा कोड। अच्छा कोड लिखने के लिए क्या समझना पड़ता है कि वो इंटरनली कैसा चलेगा। ठीक है। एक एक आपको एक फॉर्म बनाने दिया, एक लॉगिन फॉर्म बनाने दिया, लॉगिन जिसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड है। बट आपने ऐसा कोड लिखा कि वो 500 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट हो रहा है, बट किसी और ने ऐसा कोड लिखा कि उसको उसमें 2 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है। काम दोनों का ही परफेक्ट चल रहा है। ठीक है। बट क्योंकि आपको पता था कि चीजें अंदर से कैसे चलती है, तो आपने क्या किया? उसको ऑप्टिमाइज वे में लिखा। ठीक है। तो सिर्फ कोड लिखना मत सीखो, अच्छा कोड लिखना सीखना है। ठीक है। तो पूरा इंटरनल कैसे चलता है, इवेंट लूप क्या होता है, हर एक लाइन लिखोगे वो कितना टाइम लेता है, क्यों लेता है, वो सारी चीजें समझना जरूरी है। ठीक है। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू टॉपिक्स। ES5 क्या है? क्या है? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? चलो जल्दी नो जल्दी सर, आंसर करो। नहीं, एक मैं क्या है? स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स है। ठीक है। स्टैंडर्ड है। ES5 एक स्टैंडर्ड है। ES6 भी एक स्टैंडर्ड है। ES5 में जो चीजें ऐड की वो क्या हो गई? ES6 में आ गई। तो ES6 में क्या हो गई? जो ES5 में था वो ES6 में आ गया। ठीक है। ES5 में जो चीजें थी वो ES6 में आ गई। और ES6 में कुछ नई चीजें भी आई। ठीक है। तो कौन सा वाला जीतेगा? मतलब ये दोनों के कंपैरिजन में क्या लगता है, किसका वेट हैवी है, कौन जीत सकता है? ES6, ES राइट। 6 हाँ। बट अपग्रेडेड है ऐसा ना। नहीं है कि ES5 गलत है। ES5 में जो कोड है वो तो अभी भी चल रहा है। आप लोग लिखोगे वो अभी भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा टाइम ले लेगा। बट उसको बस लिखने का एक एफिशिएंट वे बन गया। अब जैसे ES5 में फंक्शंस थे, ES6 में भी फंक्शन है। बट क्या हो गया? एरो फंक्शन आ गया। अब एरो फंक्शन का कुछ मीनिंग है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग ES5 का फंक्शन इसमें ES6 में लिखोगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। बट उसको लिखने का एक एफिशिएंट वे आ गया। तो कौन जीता ये आंसर करना डिफिकल्ट है। बट यूज क्या करोगे तुम लोग? ES6। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे एफिशिएंट वे है। उसमें जो ES5 में था वो तो ऑलरेडी है ही, प्लस नई चीजें आ गई। तो देखा जाए तो जीतेगा कौन? ES6। इसको जस्टिफाई करना डिफिकल्ट है। बट कौन सा फेमस, कौन सा ज्यादा चलेगा? ES6। क्यों? क्योंकि उसमें
कुछ एफिशिएंट वे में लिखोगे कोड, तो जो चीज ES5 में 10 लाइन की होती थी, ES6 में 2 लाइन की हो जाएगी। तो कौन सा लिखोगे? 2 लाइन वाला ही कोड लिखोगे ना। हाँ। ठीक है। इसीलिए ये जो चीज की ना कि इसमें 10 लाइन का कोड इसमें 2 लाइन में हो जाए ES6 में, इसीलिए इसको क्या बोला गया? वो जो ES5 में लिख रहे थे वो भी जावास्क्रिप्ट था, ES6 में जो लिखोगे वो भी जावास्क्रिप्ट है, बट इसको एडवांस जावास्क्रिप्ट बोला गया है। ठीक है, इसको एडवांस जावास्क्रिप्ट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एफिशिएंट वे में लिख रहे हो, थोड़े एडवांस वे में लिख रहे हो, तो आपका लाइन ऑफ कोड क्या हो गया? कम हो गया। एक एप्लीकेशन बनाओगे उसमें कितना कोड होगा पता है? लाखों लाइन के कोड होंगे। बट उसमें से अगर आप एक लाइन भी बचा सकते हो, मतलब आप एक बहुत अच्छे डेवलपर बन रहे हो, कि उसमें से जहाँ पे 1 लाख लाइन लगली थी वहां पे आपने क्या किया, एक लाइन बचा ली। एक लाइन बचा ली मतलब आपने उसका एक एग्जीक्यूशन टाइम बचाया, आपने मेमोरी बचाया। उस वजह से वो क्या हो रहा है, फास्ट चल रहा है, उतना कम डेटा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे जब हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे उसमें, फिर बैकएंड से जाएंगे तो हम लोग का फ्लो कैसा होगा। पहले जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, अगर जावास्क्रिप्ट सब किसी को नहीं आ रहा, सब आप मोस्टली आप लोग को नहीं आता है राइट, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। फिर जावास्क्रिप्ट सीख के हम लोग पहले बैकएंड सीखेंगे। ठीक है। बैकएंड सीखेंगे, बैकएंड को समझेंगे, बैकएंड कैसा चलता है, डेटाबेस कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे डेटा आता है, फिर उसमें एपीआईज होती है। एपीआईज क्या है? क्योंकि बैकएंड में जो क्रिएट करोगे वो फ्रंट एंड के साथ जाना चाहिए ना। इंटरैक्ट बैकएंड फ्रंट एंड भी तो बात करनी चाहिए अपने से, तो उसके लिए एपीआईज क्रिएट करेंगे। वो जब आपको पूरी तरह समझेगा तो हम लोग फ्रंट एंड पे आएंगे। फ्रंट एंड में अज्यूमिंग कि आपको HTML CSS आता ही है, उसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट कैसे डालेंगे। ठीक है। वो तो हम लोग जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तभी आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा, बट उसको बैकएंड से कैसे कनेक्ट करना है, फ्रंट एंड बैक एंड बात कैसे करेगा, डेटा प्रेजेंट, डेटा भेजेगा कैसे, डेटा लेगा कैसे, ये हम लोग करेंगे उसके बाद। तो पहले क्या सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट, जिसमें आप फ्रंट एंड सीखोगे HTML CSS, उसमें थोड़ा जावास्क्रिप्ट अप्लाई करोगे, फ्रंट एंड को इंटरेक्टिव बनाओगे। फिर हम लोग सीखेंगे बैक एंड, जिसमें नोड जेएस हो गया। फिर हम लोग उसके साथ डेटाबेस सीखेंगे, बैक एंड और डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जब वो चीजें हो जाएगी, उसमें हम लोग कुछ एपीआईज बनाएंगे। जो एपीआईज होता है कि आपको पता नहीं है, बट वो अभी के लिए समझ लो, वो आपको फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करने के लिए काम आती है। तो उसको हम लोग इंटरेक्ट कराएंगे फ्रंट एंड से, तो हम लोग पूरा फ्रंट एंड बनाएंगे। फ्रंट एंड किस में करेंगे? रिएक्ट में करेंगे। रिएक्ट के अंदर क्या कोड लिखना है, जावास्क्रिप्ट लिखना है, बट रिएक्ट एक स्ट्रक्चर दे रहा है उस वे में लिखना है, तो हम लोग वो रिएक्ट सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर सर। कुछ डाउट किसी को? नो सर। अब तक कुछ रिसर्च किया हो आपने, उसमें कुछ कंफ्यूजन आ रहा है मेरी बातों में, आपके रिसर्च में, तो पूछ सकते हो। सर एक चीज पूछना था सर, ये मास्टर क्लास है, ये तो हमें रेगुलर नहीं मिलेगा। सॉरी, मास्टर क्लास है तो सर ये हमें रेगुलर नहीं मिलेगा ना? रेगुलर मास्टर क्लास नहीं, ये आपको रेगुलर नहीं। और आप तो रेगुलर में तो पूरा बैच सीखोगे ना, पूरा इंटरनल सीखोगे। ये तो आपको एक ओवरव्यू है कि क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या होता है। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो हम लोग जब आगे सीखेंगे तो पूरा आप सीखोगे कि चलता कैसे, क्या होता है, कोड कैसे लिखोगे, पूरा कोड वोड लिखोगे ना आप लोग तो। हम लोग का मोस्टली सेशन कैसा होगा, इंटरेक्टिव होगा। तो आप लोग को भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना होगा कि कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे तो उसके आंसर करे। अब किसी को कुछ आता नहीं है, सब सीख ही रहे, तो उतना इंटरेक्शन आप लोगों को भी देना पड़ेगा, उतना इंटरेस्ट, और आपको साथ में कोड भी करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, और कुछ डाउट किसी को? नहीं? ठीक है, cool. Also, you're there on the call? Uh, yes, Sanjeev. Yeah, yeah, so we are done. Okay, okay, sure. So, thank you so much, Sanjeev, for this wonderful masterclass. So, students, any feedback about the class, you can write it in the chat box. Sanjeev, sir, can you please stop the sharing screen? Yeah, thank you. So, this was only the masterclass. The regular batch will start from the next week, and the class timings and days will be updated in the your WhatsApp group. ओके मैम। Okay, yeah, sure. So, we'll end this session here. We'll continue regular classes from the next week. Okay. ओके। Yeah. Thanks so much, everyone. Thank you so much, Sanjeev, sir. You, थैंक यू bye. मैम। Yeah.
Thank you, sir. Thank you. Yep. Bye. Have a good day. Bye.